Hello everyone, welcome to Industry Insights. I am thrilled to have with us a young, dynamic and creative entrepreneur who's making waves in the natural beauty industry. At just 20 years old, Janam is not only the creative director but also the co-founder of Butterco, a brand that's redefining natural beauty products. Janam, thank you for joining with us today. Let's dive right in and uncover the story of success, your journey and the secret to your success. Thank you for joining us. Thank you, Honey, for inviting me. Take us back to the beginning. What sparked the idea for Butterco and what drove your passion for natural beauty? एक्चुअली ये स्टार्ट हमने काफी पहले से कर दिया हुआ है. लाइक आइडिया बहुत पहले का था. एग्जीक्यूशन वाज लेट. Okay. माय को-फाउंडर, द फाउंडर ऑफ बटरको, माय सिस्टर, उसका ये मेन आइडिया था. एंड ये आइडिया आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन निकला है. लाइक शी हैज अ वेरी कॉइली एंड कर्ली हेयर्स, सो शी यूज्ड मेनी प्रोडक्ट्स. इंडिया में उसकी बहुत ज्यादा कमी थी. मेरे फादर कहीं बाहर जा रहे तो वहां से वो कर्ल्स के अलग अलग प्रोडक्ट्स दीदी के लिए ला रहे. शी इज टेस्टिंग इट एंड ऑल. एंड हमें ये आइडिया आया कि इंडिया में इसकी अभी बहुत लैक है. ये इट इज लैक ऑफ प्रोडक्ट्स. नॉट राइट नाउ, व्हेन वी स्टार्टेड. फिर कंपटीशन बढ़ रहा है. कर्ल्स की काफी इंडस्ट्री अभी ज्यादा बढ़ रही है. एज यू कैन सी, पहले कर्ल्स का मार्केट उतना नहीं था. अब मार्केट आने लगा है उसका. सो वी स्टार्टेड एज अ कर्ली हेयर ब्रांड, बट नाउ वी पिवट टू नॉर्मल हेयर्स टू. Okay. We have seven products in total. 5 products dedicated to only in curly hairs, Colors. and 2 products are for normal silky and straight hairs. Okay. So next question is, what sets Butterco products apart from other natural beauty brands? Can you share some of your unique formulations? Okay, as a unique formulation, curly hairs के अंदर जो ingredients है, our name is Butterco. Butter. Yes, of course. Like इसके अंदर जो ingredients वो natural butters है, like shea butter, Yes. like jojoba oil, natural ingredients से उससे बना हुआ है ये. So वो उससे अलग होता है, जो हमारे अफोर्डेबिलिटी में ज्यादा है. सेम प्रोडक्ट हमारी लो और दूसरी कोई ब्रांड की लोगे आप, तो प्राइस डिफरेंस काफी ज्यादा आएगा आपको. वी आर क्वाइट अफोर्डेबल एज And एन results too. इंडियन. सॉरी, Results too. यस, इट गिव्स अ रिजल्ट. एंड ऑफ कोर्स मेरी जो 2 नॉर्मल प्रोडक्ट्स है, those are made up of black rice fermented solution, which is India's first ingredient we used in it. Oh, nice. Really Yes. nice. So moving forward to next question, how do you ensure the quality and sustainability of your ingredients? Do you have any exclusive sourcing partnerships? Yes, we do have our exclusive sourcing partnerships too. मेरे फादर का उनका अलग बिजनेस है. They are into pharmaceuticals. Okay. Okay, so we have some kind of contacts in cosmetics too. So हमारे जो ingredients आते हैं वो अलग अलग जगह से आते हैं, and उसका exclusive partnership भी है हमारे पास. Okay, really nice. Are there any exciting new products, launches or innovations on the horizon? Actually, that's a surprise for you all guys. 7 products अभी हेयर केयर इंडस्ट्री में है. Okay. हेयर केयर इंडस्ट्री में अभी काफी कुछ नया आना बाकी है. Hmm. आ रहा है. हमने जो बात की आपको, दैट्स ब्लैक राइस फर्मेंटेड सोल्यूशन, उसके अंदर ही काफी रेंज आ रही है. अच्छा. अलग अलग प्रोडक्ट्स होंगे. और ऑफ कोर्स वी आर कमिंग इनटू स्किन केयर. हेयर केयर इंडस्ट्री के अंदर भी काफी नया आएगा. बॉडी केयर होगा, हेल्थ केयर होगा. इट्स नेक्स्ट 20 years ऑफ विजन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. सो मुझे ये भी जानना है कि यू आर जस्ट 20 years old and already a co-founder and director of Butterco. How did you manage your studies and business simultaneously? ओके, मैनेजिंग मैं अभी वर्ड यूज नहीं करना चाहूंगा. लाइक Okay. मैनेजिंग तब होता है जब यू आर डूइंग इट. अभी पैशन है. इट्स माय पैशन. So you हो wanted to जाता do है that. यार. आई वांटेड टू बी एंटरप्रेन्योर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम. सिंस चाइल्डहुड आई वांटेड टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस. आई वांटेड टू बिजनेस एंड एवरीथिंग. So you're also working on your dreams. यस, ऑफ कोर्स. एंड होता क्या है, अगर कोई काम आपको नहीं करना और आप कर रहे हो, तो आपको कुछ मैनेजिंग करना है, ये करना है, वो करना जबरदस्ती वाला है. नहीं जबरदस्ती कर वाला नहीं है. आई एम डूइंग बाय माई सेल्फ ओनली. Very nice, very Yes, nice. and of course कि
कॉलेज होता है, आई हैव टू मैनेज माय स्टडीज. Okay. Okay, yes. You are not managing your no, business. no. I'm actually managing my studies. Actually, I'm a quite not good at studies. I'm a backbencher, of course. But अभी business के लिए I'm sacrificing some of my studies. लेकिन मेरा जो study का जो है, हाँ. वो भी I'm doing my IMBA from LG University only. मेरा family business का ही course है. Okay. So आगे future में I will manage 2 businesses. अभी स्टडीज का क्या है, आई एम डूइंग इट. अभी एग्जाम टाइम आएगा तब पढ़ेंगे, असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट्स वगैरह थोड़ा कर लेते हैं. डिग्री लेनी पड़ेगी इसलिए आपको स्टडी करनी है. यस ऑफ कोर्स. लेकिन ओके, यू नो आई व्हाट आई यू नो. Yes, yes. So moving forward, how has consumer demand for natural beauty products evolved in recent years? What's driving this trend? ओके, नाउअडेज लोगों को ना काफी पर्सनलाइज चीज चाहिए. True. Even me too. यस, मेरा ये स्किन है, मेरे ये हेयर्स है, ये टेक्सचर है, उसके लिए तो ये होगा. हाँ. फिर बहुत ज्यादा वेवी हेयर है तो मुझे मॉइस्चर ज्यादा देना पड़ेगा. मेरे एकदम सिल्की है, मेरे को प्रोटीन देना पड़ेगा मेरे हेयर्स को एक्सटर्नली. Right. तो ये काफी पर्सनलाइज हो गया है. मतलब आज से 5 to 7 years पहले ये लोग सब जेनरिक प्रोडक्ट यूज करते थे. जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, इन्फ्लुएंसर्स. अभी लोगों को ना अवेयरनेस आ गई है व्हाट टू यूज नाउ. Right. ये ट्रेंड आएगा. और अभी तो थोड़ा मतलब कस्टमाइज में जाता है, लाइक जेनरिक कस्टमाइजेशन होता है. लाइक सारे कर्ली एंड सारे बेबी हेयर्स के लिए एक जेनरिक प्रोडक्ट आ गया लाइक आर. ऑफ कोर्स वी विल पिवट इन द फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए ये ट्रेंड है. आगे जाके क्या होगा कि मेरे ये हेयर्स है, उसके लिए अलग से प्रोडक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए अलग से एक मशीन होगा जो पूरा करके देगा वो प्रोडक्ट बना के. Okay. अभी 2-3 ऐसी ब्रांड है जो कस्टमाइज पे आती है. अच्छा. लाइक आप पूरा अपनी डिटेल्स भरो, कौन सा हेयर टाइप है, कौन सी स्किन टाइप है आपकी, वो पूरा आपको बना के देगा. ओके, ये भी ट्रेंड आ रहा है. इन द फ्यूचर एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेबल टू बी ऑनेस्ट. Yes, yes. तो बटर को बनाता है कस्टमाइज प्रोडक्ट्स की नहीं? कस्टमाइज ओनली फॉर कर्ली हैंड वेवी हेयर्स. लाइक कस्टमाइज वो जेनरिक है. अभी आपकी वेवी हेयर्स है, ऑफ कोर्स मेरी भी वेवी हेयर्स है, और किसी और के कर्ली हेयर है काफी. लेकिन वी कैन यूज सेम प्रोडक्ट, लाइक क्योंकि उसके अंदर वो पूरा इंग्रेडिएंट्स नेचुरलाइज है पूरा. Right. तो वो यूज हो जाता है. लेकिन आगे जाके क्या होगा, लोगों को काफी पर्सनलाइज चाहिए. दे डिमांड कि हमें चाहिए ये, तब वो हमें करना पड़ेगा. एंड वी विल डू इट ऑफ कोर्स. So moving forward to next question, what trends do you think will shape the future for the industry? Are there any opportunities or challenges on the horizon? Of course there are challenges. Challenges में तो मेन ये है कि कंपटीशन बहुत है. बहुत. Yes. There are numerous number of competitors I have. Like we started around 2 years ago. Okay. ये 2 years के अंदर आई नो कि 5 कर्ली हेयर्स के भी और आए हैं. ये जब हमें आइडिया आया था, वी वर द फर्स्ट. लेकिन हमें एक चीज क्या हो गई, वी डिडंट एग्जीक्यूटेड इट. उसके अंदर ही काफी कॉम्पिटिटर्स मेरे आ गए. अभी जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, लाइक आपके लिवॉन ले लो, कैरास्टेट्स, देयर आर वेरी बिग ब्रांड्स. वो लोग भी अब आ गए इसके अंदर. एवरीवन इज इन द इंडस्ट्री. चैलेंजेस रहेंगे. सोल्यूशन ये है कि हमें मार्केटिंग अलग से करनी पड़ेगी इसके लिए. पीपल नीड टू अवेयरनेस आनी पड़ेगी उनके ऊपर कि हमारा प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनाया हमने, काफी R&D की है. फिर क्या कहते हैं, मार्केटिंग ही मेन है जो है, क्योंकि प्रोडक्ट जो हमारे रिटेंशन रेट है वो भी काफी ज्यादा है. लाइक जो एक बार यूज करके जाए, दे आर कमिंग बैक. मेरे काफी अभी मैसेजेस में मेरे पास है अभी इंस्टाग्राम पे कि वी आर नॉट चेंजिंग नाउ. वेरी नाइस. यस, प्रोडक्ट अच्छा बन गया है, लेकिन अभी आगे आने के लिए क्या करना है, मार्केटिंग है, अवेयरनेस है. दैट्स इट ओनली. यस, ट्रू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most valuable lesson you have learned as a business director? How has it impacted your approach to the leadership? Okay. As a team, I say, मैं ऐसा नहीं दर्शाना चाहता कि I'm the leader, you need to call me boss and everything. Yes. As a team, we are working together. हंसी मजाक चलता है. मेरा काफी ह्यूमरस नेचर भी है, तो
उनको ऐसा लगना चाहिए कि वी आर वर्किंग विथ अ फ्रेंड, नॉट इन अ कंपनी एंड ऑल। समझे आप? फिर दूसरी चीज है कि सारी चीज एज अ डायरेक्टर और एज अ को फाउंडर सब आपको नहीं देखना चाहिए। लाइक माइक्रो मैनेजमेंट आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। लाइक देयर टीम है मेरे पास, लेकिन डेली डेली पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ट्रू। समझे आप? लाइक होता क्या है, मैं माइक्रो मैनेजमेंट करने जाऊंगा ना, तो मेरे आगे का जो विजन है वो मैं उसका कंप्लीट नहीं कर पाता, टाइम ही नहीं मिलेगा फिर डाइवर्ट मुझे। हो जाएगा फिर डाइवर्ट तो नहीं होता, ओके। लेकिन फोकस डाइवर्ट होता है। लाइक हाँ। माइक्रो मैनेज छोटी छोटी पैकेजिंग का कुछ इश्यू आ गया, वेबसाइट बराबर नहीं चल रही, बग्स आ रहे हैं एंड ऑल, वो सबका वो इश्यू हो रहा है, वो दूसरे लोग संभाल लेंगे। यू नीड टू आगे का। लेकिन हाँ एक चीज है कि ऐसा नहीं कि छोड़ ही दो, हाँ वो कर लेंगे, नहीं, देखना पड़ेगा यार। ऑब्वियसली। फ्रेंड्स बोलेगा, लेकिन फ्रेंड्स के अंदर काम थोड़ा नीचे आएगा हाँ उनका, हाँ, वो करना पड़ेगा। ट्रू। बैलेंस करके रखना पड़ता है उसको। Yes, absolutely. So, next question. Any advice for aspiring entrepreneurs looking to enter the natural beauty or B2C space? What pitfalls should they avoid? पेशेंस रखनी चाहिए। नहीं मैंने होती। मैं आज की जनरेशन में मैंने देखा है, दे आर स्क्रोलिंग रील्स एंड ऑल, 15 सेकंड के अंदर कुछ नहीं मिला, दे आर स्क्रोलिंग। Yes. वो जो क्या कहते हैं, फोकस टाइम जो है वो उनका बहुत कम हो गया है। Yes. और even पेशेंस hook बहुत चाहिए कम है। वो हाँ hook हुक भी नहीं- चाहिए ना। हाँ, right. वो हुक के कारण वो उसके अंदर ऐसे इधर से इधर आएगा, वो कान ऐसे, लेकिन ऐसे तो पकड़ना पड़ेगा। Yes, yes. तो तो पेशेंस पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा कि लर्निंग नहीं जानी चाहिए। मेरे कीप में लर्निंग। यस, मेरे में एक बार ऐसा एटीट्यूड आ गया, आई एम समथिंग वाला, सब आता है, फैमिली बिजनेस है, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, कुछ करने की जरूरत नहीं है, बैठा हूँ, लेकिन नहीं, You have एक done. झापट ऐसा पड़ता है ना, चुपचाप ऊपर आ जाते हैं लोग। Yes, yes. Exactly. Right. So next question. How do you personally define success in business? What metrics or milestones do you use to measure Butterco success? Okay, we are growing right now, of course. अभी लोगों को पता नहीं है अबाउट माय ब्रांड। हाँ, तो कभी कभार क्या होता है, मैं मेरे फ्रेंड को भी बता रहा हूँ, किसी कर्ली हेयर्स की वेवी हेयर्स है, ऑफ कोर्स अंदर का कीड़ा तो है, बताएंगे कि है हमारा ऐसा ब्रांड, यू शुड यूज इट। तो काफी बार ऐसा है कि ओके बटर को आपका है, वी नो अबाउट दिस, दैट्स अभी के लिए वो मेरा सक्सेस है कि पता चल रहा है, हमारा मार्केटिंग हम जो कर रहे हैं, पीपल नो अबाउट अस। अभी मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे कॉलेज के अंदर पीपल नो अबाउट माय कंपनी एंड ऑल, तो दे नो मी बाय माय कंपनी नाउ। Okay. कि हाँ वो कर्ली हेयर इंडस्ट्री का कोई है यहाँ पे, दे नो मी बाय माय फेस नाउ। तो Butterco आया तो जैनम ऐसा याद आ जाता है उनको। एग्जैक्टली। अब मैं कहीं कोई स्टोर में जा रहा हूँ, उनको कोई और शैम्पू बताऊंगा, उसके बदला ये बताऊंगा कि ये ऐसा एक प्रोडक्ट है, राइट। दे नो कि हाँ वी नो अबाउट दिस, आर यू द फाउंडर। और वो वर्ड ऑफ माउथ कि मैंने यूज वर्ड किया ऑफ तो तू माउथ, भी यूज एग्जैक्टली। कर। Yes. आई टेल यू वन स्टोरी, वन ऑफ माय क्लोज फ्रेंड, मतलब उतना क्लोज नहीं, मतलब फ्रेंड है, Yeah. तो उसकी एक दोस्त है, उसके काफी वेवियन कर्ली हेयर्स है, दे आर हैविंग अ कन्वर्सेशन एंड उसका वो बता रही थी कि यार बहुत फ्रीजी हो रहे हैं हेयर्स, वो सब हो रहा है, तो उसकी फ्रेंड ने ये बताया कि देख बड़ों का हेयर मास्क है, यू शुड यूज दिस, Oh, nice. एंड ही वाज लाइक ये तो मेरे दोस्त का ही है। Okay. पीपल नो, Yes. That's- वो अलग से खुशी होती वो है। अलग से wow. खुशी हो जाती है। अभी मैंने देखा है कि काफी अलग अलग लोग हैं, 5 से साल के बाद अवेयरनेस आनी चालू हो गई, पूरा हो जाएगा, वो हो जाएगा, Yes. पीपल नो, तो ये भी चल रहा है हमारा। तो ये स्टेज में अगर इफ यू नो माय ब्रांड, दैट्स माय सक्सेस माइलस्टोन। Yes, yes. True. इफ यू एटलीस्ट नॉट बाइंग, नॉट परचेजिंग, बट यू नो अबाउट दैट कि यहाँ प्रोडक्ट है ऐसा, अभी तक के लिए वो बराबर है हमारे लिए। Yes. Right, right. Next question. How do you notice any differences in consumer preferences between your B2C and retail customers? Actually, there are hell lot of difference between those two consumers. कि रिटेल के जो कस्टमर्स होते हैं, दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। उनको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए इन अफोर्डेबल प्राइस, वो भी एकदम हैंड टू हैंड, लाइक अभी लिया अभी हो गया, समझे आप, हाँ. क्विक कॉमर्स हो गया वो, Yes. वन टाइप ऑफ। उसके आगे अगर इंटरनेट के जो कंज्यूमर्स है, जो B2C में जाते हैं डायरेक्ट,
जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ई कॉमर्स से करते हैं, दे वांट टू नो अबाउट एवरीथिंग just because of internet and influence of every now and then internet के अंदर they are very conscious about their beauty and ingredients. वो हर पहले आप नहीं देखते थे कि पीछे क्या कंटेंट है. Now everyone is saying सोडियम है, सल्फेट है, ये है. फिर जो रिटेल के जो होंगे ना, वो ये नहीं देखेंगे कि ये क्रुएलिटी फ्री है, वीगन है, ये सब नहीं देखेंगे. दे आर लाइक सस्ता है, शैम्पू है, ले लो, नया ब्रांड है, ले लो. ये होता है. हाँ, राइट. वहां अगर मैं डिटेल में पूरा फोकस कर दूंगा तो मेरा मार्जिन कम हो जाएगा. मार्जिन में उतना मेरे को अभी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे जाके वो मेरे इंप्रेशन पे आएगा. लाइक दिस ब्रांड इज क्वाइट अफोर्डेबल, तो मेरे इंप्रेशन में वो खराब आएगा फिर. ट्रू ट्रू. यस. उसके आगे मैं B2C में, ई कॉमर्स में जाऊंगा. दे आर रेडी टू पे फर्स्ट ऑफ ऑल. फिर इंग्रेडिएंट्स वो देखेंगे. हमारे जो प्रोडक्ट्स बनाए दे आर सल्फेट फ्री, सिलिकॉन फ्री, मिनरल फ्री, वीगन है, क्रुएलिटी फ्री है. राइट. ओके. तो वो देखेंगे, वहां से वो देखेंगे, वो ले लेंगे. ये सब रहेगा. ये डिफरेंस काफी रहेगा. ये रहने भी वाला है. That's why I'm not focusing on retail right now. Right. रिटेल के अंदर मैं आऊंगा आफ्टर 2-3 years. एक बार मेरा ये सेट हो जाएगा, फिर आई एम इनटू रिटेल टू. Okay. So moving forward to next question. Social media plays a big role in brand awareness. How does Butterco leverage platforms like Instagram marketing? इंस्टाग्राम से ही मार्केटिंग होती है, टू बी ऑनेस्ट. मेटा मार्केटिंग इज द की फॉर एवरी ई कॉमर्स बिजनेसमैन. Yes. अगर मैं इंस्टाग्राम पे मेरी एड्स बंद कर दूंगा तो तो कस्टमर्स को पता ही नहीं होगा. लेकिन इंस्टाग्राम अभी सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लेटफॉर्म है. Even every age group uses Instagram nowadays. एग्जैक्टली. मेरे फादर अभी यूज कर रहे हैं इंस्टाग्राम, मेरी मदर यूज कर रही है इंस्टाग्राम. Same. हाँ, तो उनको वहां से एक बार पता चल जाता है. Right. अभी न्यूज़पेपर में ऐड करूंगा ना, तो क्या होगा, जो सर्टेन एज ग्रुप है उनको ही पता चलेगा, क्योंकि उनको आदत है पेपर पढ़ने की. अभी मेरे को कोई भी न्यूज चाहिए तो आई विल सी इंस्टाग्राम. मुझे इंस्टाग्राम से ही पूरी न्यूज पता चलती है. Yes. फिर इन शॉर्ट से वो चल अलग, वो न्यूज़पेपर का अलग हो गया. लेकिन उससे ही मेरा मार्केटिंग होगा. मेरा अभी 90% जितना मार्केटिंग होता है, जितने कस्टमर मेरे आते हैं, कन्वर्ट भी होते हैं, वो इंस्टाग्राम और मेटा मार्केटिंग से ही होता है. Okay. So next question. With clean beauty on the rise, how do you navigate the challenge of next, with the clean beauty on the rise, how do you navigate the challenges of standing out in the crowd market? स्टैंडिंग आउट इन अ मार्केट, उसके लिए मार्केटिंग अवेयरनेस चाहिए. Yes, true. वी मेड अ स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट. ओके. ये प्रोडक्ट रेंज हमारी सबसे ज्यादा बेस्ट है. लाइक काफी 2-3 साल R&D के अंदर निकाले हमने. स्टैंडिंग आउट फॉर अ मार्केट के लिए फिर कर लिया, इंडस्ट्री लाए, कॉम्पिटिटर्स आ गए. टू स्टैंड आउट, और यूएसपी हमारी है कि हमने ब्लैक राइस लाया. ब्लैक राइस ये इंडिया में है ही नहीं. वी आर द फर्स्ट वन इंट्रोड्यूस्ड ब्लैक राइस फर्मेंटेड सोल्यूशन. वो क्या होगा, उससे फ्रीजीनेस है, हेयर डैमेज है, फिर स्प्लिट एंड्स है, डैंड्रफ है, सबका एक ही सोल्यूशन ब्लैक राइस का है. वो Okay. ब्लैक राइस आपको पता भी नहीं होगा वो प्रोडक्ट है क्या. Yes. उसका फर्मेंटेड उसको बनाते हैं, वो उसको फर्मेंट करके के बाद उसके अंदर 2-3 और इंग्रेडिएंट्स आते हैं, तब जाके ये बनता है. Okay. मेरा काफी हेयर लॉस होता है, लेकिन आफ्टर यूजिंग दोस प्रोडक्ट मैं मतलब तारीफ कर रहा हूँ, यस, लेकिन मेरा हेयर फॉल कम हो गया है. Okay. व्हेन आई वाज वॉशिंग माय हेयर, तब मेरे हाथ में काफी हेयर अब नहीं आते. Nice. So last but not the least, if you could partner with any brand or influencer in the natural beauty space, who would it be and why? इन्फ्लुएंसर्स के अंदर ना तापसी पन्नू है, फिर सानिया है, फिर कंगना रनौत है. दे आर माय ड्रीम इन्फ्लुएंसर. अगर उनके साथ मेरा कोलैबोरेशन हो गया, हाई पे चला जाएगा. पीपल विल नो, क्योंकि उनके फॉलोअर्स, उनका इन्फ्लुएंस भी इतना ज्यादा है कि अब एकदम ज्यादा हाइपर मार्केटिंग हो जाएगी मेरी. और इंडस्ट्री के अंदर देखने जाओ कि रिटेल मार्केट्स लाइक वॉलमार्ट, रिलायंस, डीमार्ट, वहां पर
अगर मेरा प्रोडक्ट्स आ गया तो यू नो इट वुड बी माय सक्सेस हाई हाँ. टाइम वाला. Right, true. So Those thank are you. my main, Complete कर ले. you know, फोकस है वो मेरा कि वहां तक जाना है. गोल्स माइक्रो है लेकिन वो मेन गोल है हो टू जाएगा, हो रीच जाएगा. देयर. Yes. Best wishes with you. थैंक यू सो मच हनी. Jainam, this has been such an insightful conversation. Your journey at just 20 years old is incredibly inspiring, and Butterco commitment to sustainability, innovation, and quality is truly impressive. For all our listeners who wanted to stay updated on Butterco latest product, collabs, and trends in natural beauty space, make sure to follow on Instagram @butterco.in. Thank you so much, Jainam, for joining with us today. Wishing you and Butterco continued success in redefining natural beauty. थैंक यू सो मच. Thank you प्लीज so फॉलो much. butterco.in. Yes, do follow.